أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبہ تعلیم القرآن جوکے کے تحت اردو زبان میں آن لائن G6 قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کلاس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کریں گے اور میں اپنی ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ کسی ایک متعلمہ کو مائک دیجیے پلیز۔ السلام علیکم G6322 G6322 السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی پلیز شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بھی انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بس کیا وہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ حالانکہ اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم سے محبت اور اہمیت کے بیان کے لیے حدیث مبارکہ پیش کرنے کے لیے میں کسی ایک متعلمہ سے گزارش کروں گی۔ ایڈمن پلیز مائک دیجیے گا۔ السلام علیکم G6397 G6397 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی پلیز شروع کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کریم فرماتا ہے جو شخص قرآن کریم کی تلاوت اور درس اور تدریس کی مصروفیت کی وجہ سے میرا ذکر نہ کر سکے اور مجھ سے دعا نہ کر سکے، مجھ سے کچھ سوال حاجت بھی نہ کر سکے، تو میں اسے اس عطا سے بھی افضل عطا کرتا ہوں جو میں مانگنے والوں کو عطا کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کی فضیلت تمام دیگر کلاموں پر اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی فضیلت اپنی مخلوق پر ہے۔ یہ ترمذی کتاب الفضائل القرآن، فضائل القرآن، کتاب فضائل القرآن۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ارشاد مبارک حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز پیش کرنے کی سعادت کسی ایک شاملہ کو دی جائے گی۔ جی ایڈمن پلیز مائک دیجیے گا۔ السلام علیکم G6460 G6460 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمدیوں کو ہمیشہ فکر رہنی چاہیے۔ قرآن کریم میں آیا ہے، وقال الرسول یا رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، الفرقان 31۔ اور رسول کہے گا، اے میرے رب، یقیناً میری قوم نے اس قرآن کو متروک چھوڑا ہے۔ بس احمدیوں کو ہمیشہ فکر رہنی چاہیے، کیونکہ ماحول کا بھی اثر ہو جاتا ہے، دنیا داری بھی غالب آ جاتی ہے۔ کوئی احمدی کبھی بھی ایسا نہ رہے جو کہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کرتا ہو۔ کوئی احمدی ایسا نہ ہو جو اس کے
अहकाम पर अमल ना करता हो। अल्लाह ना करे कि कभी कोई अहमदी इस आयत के नीचे आ जाए कि उसने कुरान करीम को मतरूक छोड़ दिया हो। बस उसके लिए तवज्जो देने की जरूरत है। जो कमियां हैं हर एक को अपना अपना जायजा लेना चाहिए कि हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं, हमने कुरान करीम को छोड़ तो नहीं दिया, तिलावत बाकायदगी से हो रही है या नहीं, तर्जुमा पढ़ने की कोशिश हो रही है या नहीं, तफसीर समझने की कोशिश हो रही है या नहीं। इरशाद हज़रत खलीफतुल मसीहुल खामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़। जज़ाकल्लाह। अब मैं अपनी एडमिन से गुजारिश करूंगी कि वो क्लास के बारे में कुछ ज़रूरी हिदायत पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान क्लास के आदाब। कुरान करीम अल्लाह ताला की एक मुक़द्दस किताब है, इसलिए इस प्यारी किताब को पढ़ने के ज़रूरी आदाब हैं, जैसे बावज़ू होना, तिलावत कुरान करीम के दौरान सर को नाप, पाक व साफ लिबास, ऐसी जगह का इंतखाब जो पाक व साफ हो, जहाँ शोर ना हो और जहाँ रोशनी और हवा मुनासिब हो, ताकि कुरान करीम पढ़ते वक्त कोई दिक्कत ना हो। तिलावत कुरान करीम से पहले तावुज़ ज़रूर पढ़ें। इसके साथ क्लास की सहूलत के लिए कुछ और ज़रूरी हिदायत हैं, जैसे बराए मेहरबानी अपनी दुरुस्त शनाख्त के साथ क्लास में दाखिल हों, जैसे G6123, जो कि हमारी टीम की जानिब से आप सब मुतालिमात को इरसाल की गई हैं। सिर्फ ज़रूरत के वक्त हाथ खड़ा करने के इख्तियार को इस्तेमाल करें, और आप सबसे निहायत अदब के साथ गुजारिश है कि क्लास के दौरान अपना माइक और कैमरा बंद रखें और अपनी बारी पर ही माइक ऑन करें। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। क्लास की सहूलत के लिए आज कुछ अहम हदायत दी हैं। बराए मेहरबानी हमारी टीम की जानिब से इरसाल की गई ईमेल्स को ज़रूर पढ़ें। आपको जो हमारी टीम ईमेल इरसाल करती है उसमें 3 तरह के लिंक्स दिए होते हैं। पहला लिंक तो क्लास को ज्वाइन करने के लिए है, और दूसरा एक लिंक है जिसमें जो हमने टेलीग्राम पर G6 का एक ग्रुप बनाया है, और इसमें G6 की जो असेंबली है उसका मटेरियल मौजूद होता है। और तीसरा जो लिंक है उसमें अगर आप क्लास की रिकॉर्डिंग चाहते हैं, दोबारा सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए एक लिंक है। और इसके साथ साथ क्लास की आईडी से मुतल्लिक भी हदायत होती है कि यूज़र नेम की जगह या अपने नाम की जगह आईडी ज़रूर लिखा करें। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारी एक एडमिन ने अपनी रिपोर्ट में हमें स्क्रीनशॉट सेंड किया था। इसके मुताबिक अगर आप मुतल्लिमात अपनी आईडीज़ के साथ क्लास में दाखिल नहीं होंगी और किसी भी नाम के साथ आएंगी, तो हमारी टीम के लिए आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड रखना नामुमकिन होगा। इसलिए आप सबसे निहायत अदब के साथ गुजारिश है कि आप अपनी आईडीज़ के साथ क्लास में दाखिल हों। जब आप क्लास में दाखिल होती हैं तो आप अपना नाम बहुत आसानी से तब्दील करके आईडी लिख सकती हैं। जैसे आपने लिंक पर क्लिक किया और क्लिक करके आप क्लास में दाखिल हो गई। जब आप क्लास में दाखिल होती हैं तो आपको एक बार नजर आएगी जिस पर मुख्तलिफ आइकन्स बने होंगे। आपने पार्टिसिपेंट के आइकन को क्लिक करना है। जब आप इस आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको एक लिस्ट नजर आएगी जिस पर होस्ट को होस्ट भी होंगे और नीचे बहुत सारे मुतल्लिमात के नाम होंगे या आईडीज होंगी। जहां आपका नाम होगा आप उस पर अगर क्लिक करेंगे तो मोर की ऑप्शन आएगी। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो ये बार खुल जाएगी और यहाँ लिखा होगा रीनेम। आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ स्क्रीन पर आप अपना नाम यहाँ से खत्म करके अपनी आईडी दर्ज करेंगे। ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और आप इजीली इसको कर सकते हैं और अपनी आईडी के साथ अपनी क्लास में दाखिल हो सकती हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, अगर आप लिंक के थ्रू नहीं आते और जो हम आपको ईमेल इरसाल करते हैं उसमें 3 आपके पास आईडीज होती हैं। जैसे एक मीटिंग आईडी है, एक आपके नाम की होगी आईडी और एक आपके पास पासवर्ड होगा G6। जब आप मीटिंग को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ लिखा होगा मीटिंग आईडी, तो यहाँ पर आपने
G6 की मीटिंग आईडी देनी है, और उसके बाद यहाँ आपने नाम नहीं लिखना, यूजर नेम या योर नेम नहीं लिखना। यहाँ आपने जो आपकी G6 की आईडी होगी, G6 1 2 3 या जो भी आपके पास आईडी होगी, आपने वो यहाँ लिखनी है। और अगर आप यहाँ प्रेस कर देंगे रिमेंबर यहाँ पर, तो और फिर ज्वाइन करेंगे तो आपको बार बार अपनी आईडी लिखनी नहीं पड़ेगी। आप ज्वाइन को क्लिक करेंगे, उसके बाद आपसे वो पासवर्ड मांगेगा, आप G6 लिख देंगे। तो इस आसानी से आप अपनी आईडी के साथ क्लास में दाखिल हो सकती हैं। अगर आपके पास आईडी नहीं है तो हमारी टीम को ईमेल करके अपनी आईडी हासिल कर सकती हैं। ये ईमेल एड्रेस है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। मैं थोड़ी देर के लिए इसको स्टे रखती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको नोट कर लें, और अपनी आईडी अगर आप चाहती हैं तो यहाँ ईमेल सेंड कर दीजिए। इसके साथ साथ हमने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया है G6 कुरान क्लास का, और अब तक अगर मैंने देखा था तो उसमें 20 के करीब मुतल्लिमात ने उसमें एंटर थी, लेकिन अभी काफ़ी है जो नहीं है। अगर आप इसमें आज शामिल हो जाएंगी, एंटर हो जाएंगी, तो आपको क्लास की असेंबली का जो मटेरियल है वो आपको इसमें मिलेगा, और क्लास में दाखिल होने से पहले अगर आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्लास में जब आप आएंगी तो उसको पढ़ना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाते हैं। अज़मत कुरान के हवाले से आज हम सूरतुल फातिहा का एक मुख्तसर सा तारुफ पेश करेंगे। इस सूरत का मारूफ तरीन नाम अल फातिहा है। फातिहा का मतलब है आगाज, कलाम, दिबाचा, इफ्तिताह। मुकामी नुज़ूल, ये सूरत इब्तदाई मक्की दौर में नाजिल हुई थी। बास मुस्तनद रिवायात के मुताबिक ये मदीना में दोबारा नाजिल हुई। आयात, बिस्मिल्लाह समेत इसकी 7 आयात हैं। रुकू, इस सूरत में एक रुकू है। मुख्तसर जायजा, सूरतुल फातिहा एक कामिल और जामे दुआ है। इसके बतन से कुरान करीम के मज़ामीन निकलते हैं। ये सूरत कुरान करीम के जुमला मज़ामीन का खुलासा है। ये सूरत पूरे कुरान के लिए एक तारुफ की हैसियत रखती है, इसलिए आगाज में ही इस सूरत के पढ़ने से कारी कुरान करीम में मज़कूरा मज़ामीन से मुतारफ हो जाता है। कुरान की इब्तदाई सूरत पूरे कुरान के मज़ामीन को खोलने के लिए कुंजी का किरदार अदा करती है। क्योंकि इसमें कुरान करीम की 30 सिपारों का खुलासा मौजूद है, इसलिए ये सूरत खुद किसी पारे का हिस्सा नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं सूरतों की फहरिस्त में पहली सूरत का नाम है अल फातिहा और दूसरी का नाम है अल बकरा। और यहाँ पारों की अगर हम फहरिस्त में देखें तो पहला पारे का नाम है अलिफ लाम मीम, और यहाँ पर पहले पारे में हम जानते हैं कि सूरतुल बकरा से स्टार्ट होता है। यहाँ देखें कुरान करीम में हर पेज के ऊपर सूरत का नाम और पारे का नाम दर्ज होता है। अगर हम सूरतुल फातिहा पर देखें तो उसका नाम अल फातिहा है, लेकिन यहाँ पर किसी पारे का नाम नहीं है। और यहाँ पारा अलिफ लाम मीम, लेकिन सूरत अल बकरा है, सूरतुल फातिहा नहीं है। यानी सूरतुल फातिहा पहले पारे का या किसी भी पारे का हिस्सा नहीं है। इसमें कुरान करीम की तमाम तालीम मौजूद है, कुरान करीम का तमाम खुलासा मौजूद है, इसीलिए ये कुरान करीम के शुरू में दिबाचा के तौर पर रखी गई है। अब मैं अपनी मोहतरम साथी टीचर से गुजारिश करूंगी कि वो आपके साथ सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करें।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سوال ہے پہلا، سورۃ الفاتحہ کا نزول کہاں ہوا؟ G6337. السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی، سورہ فاتحہ کا نزول جو ہے وہ مکہ میں ہوا، لیکن مدینہ میں یہ دوبارہ بھی نازل ہوئی۔ جزاک اللہ، بہت اچھا، ٹھیک ہے، جواب اس کا یہی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، سورۃ الفاتحہ کی بسم اللہ سمیت کتنی آیات ہیں؟ G6528. G6528. Assalamu alaikum. ہم اپنی اگلی پارٹیسپینٹ کی طرف چلتے ہیں۔ G6456. السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سورۃ فاتحہ کی کل 7 آیات ہیں۔ جزاک اللہ، جواب درست ہے۔ بسم اللہ سمیت اس کی 7 آیات ہیں، جواب درست ہے۔ اگلا سوال، سورۃ الفاتحہ میں کتنے رکوع ہیں؟ G6359. السلام علیکم۔ G6359. السلام علیکم۔ سورہ فاتحہ میں 1 رکوع ہے۔ جزاک اللہ، جواب درست ہے۔ اگلا سوال ہے، سورۃ الفاتحہ کس پارے کا حصہ ہے؟ G6500. السلام علیکم۔ G6500. G6599. السلام علیکم۔ G6599. G6421. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سورۃ فاتحہ کسی پارے کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ سب سے پہلی سورت گنی جاتی ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ جیسے کہ انہوں نے بیان بھی کر دیا تھا کہ یہاں نظر آ رہا ہے نا ہماری فہرست میں سارا کچھ کہ یہ پہلی سورت تو ہے، لیکن جب پارا سٹارٹ ہوا ہے تو ادھر الف لام میم کو پہلا پارے کی پہلی سورت گنا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہی اس کی ڈیٹیل تھی کہ سورہ فاتحہ کسی سورت کا حصہ ہوتی تو کسی پارے کے ساتھ ہوتی اور پہلے نمبر پر آتی۔ سورت تو پہلی ہے، لیکن سورہ بقرہ جو ہے وہ دوسرے سپارے کی پہلے پارے کی دوسری سورت ہے، جو کیونکہ سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے تو سورہ یہ جو ہے الف لام میم یہ پہلے پارے کی سورہ بقرہ دوسری صورت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ نظر آ رہا ہے یہاں صاف ہمیں۔ قرآن کریم میں رکوع کو کس علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے؟ G6553. السلام علیکم۔ G6553. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قرآن کریم میں رکوع کو کس علامت سے ظاہر کیا جائے؟ سوری، مجھے اس کو ایکسپلین کرنا نہیں آ رہا۔ آئین کی علامت، جی، آئین کی علامت سے، اور نیچے رکوع کا نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جی، اور اوپر رکوع کا نشان حاشیہ میں بصورت آئین لگایا جاتا ہے، اوپر والا عدد سورت کے رکوع کی نشاندہی کرتا ہے، درمیان میں موجود عدد اس رکوع کی آیات کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے، جیسے کہ یہ غالباً سورۃ الفاتحہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ
सबसे पहली सूरत का पहला रकू है और इसमें 7 आयात हैं और सबसे निचले अदद के पारा के रकू नंबर का पता लगाया जा सकता है कि वो कौन सा रकू चल रहा है पारे का, लेकिन यहाँ ये पारे का चूंकि हिस्सा नहीं है इसलिए इसके नीचे कोई नंबर नहीं है। ये आपके पास इस बात का सबूत है कि ये किसी पारे का हिस्सा नहीं। जज़ाकल्लाह। अब मैं हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के एक शेर पर इसका इख्तिताम करती हूँ। है शुक्र रब्बे अज़्ज़ा वजल खारिज अज़ बयां, जिसके कलाम से हमें उसका निशान मिला। निशान। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब मुराजातुल कवाइद में हम अपने गुज़श्ता सबक की दोहराई करेंगे। हरकाते इश्बाइया की आज हम दोहराई करेंगे। जैसे कि हमारी डे टीचर्स ने बहुत अच्छे से और तफसील से आपको हरकात के मुतल्लक समझाया था। जैसे हरकाते मुख्तसरा, फता, दम्मा, कसरा, और आज हम हरकात के सबक में हरकाते इश्बाइया को दोबारा इसकी दोहराई करेंगे। इसकी पहचान ये 3 इनकी अक़साम में अलामात या निशानों से ये जाहिर किया जाता है जो किसी भी हरफ के ऊपर या नीचे पाई जाती हैं। ये अलामात या निशान हरकात इश्बाइया के किसी भी हर्फ या किसी भी हर्फ के नीचे पाए जाते हैं। वजाहत: इश्बाइया हरकात का मतलब है खींचना, लंबा करना। जैसा कि हम अपने पिछले सबक में पढ़ चुके हैं, हरकात मुख्तसरा, फता, दम्मा, कसरा, उसमें हम उसको लंबा नहीं करते और 1 सेकंड का वक्त देते हैं, लेकिन चूंकि हरकात इश्बाइया का मतलब है खींचना और लंबा करना, इसलिए इसको हम खींचना या लंबा करते हैं, इसको वक्त देते हैं। इसकी 3 अक़साम हैं: फता इश्बाइया, कसरा इश्बाइया और दम्मा इश्बाइया। फता इश्बाइया छोटी सी अमूदी लाइन जब किसी हर्फ के ऊपर हो तो उसे फता इश्बाइया कहते हैं और इसकी अदायगी का वक्त 2 सेकंड होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसकी अदायगी 2 सेकंड का इसका वक्त होता है, जैसे बा। इसी तरह कसरा इश्बाइया छोटी सी अमूदी लाइन जब किसी हर्फ के नीचे हो तो इसे कसरा इश्बाइया कहते हैं और इसकी अदायगी का वक्त भी 2 सेकंड होता है, जैसे बी। दम्मा इश्बाइया उल्टी छोटी सी वाव की शक्ल जब किसी हर्फ के ऊपर हो तो इसे दम्मा इश्बाइया कहते हैं और इसकी अदायगी का वक्त भी 2 सेकंड होता है, जैसे बू। हरकात के उसूल में अदायगी वक्त बहुत अहम है। जैसे हमारे पास अगर कोई लफ्ज लिखा हो और उसके ऊपर फता, कसरा और दम्मा की अलामात भी हों या हरकात हों और साथ हमारे पास हरकात इश्बाइया भी हो, तो हमें अदायगी के वक्त का जो बताया गया है कि फता, दम्मा, कसरा में हमने 1 सेकंड का वक्त देना है और हरकात इश्बाइया में हमने 2-2 सेकंड का वक्त देना है। तो इस चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जैसे वारिसा हु, इसको हम 2 सेकंड का वक्त देंगे, लेकिन बाकी जो हरकात हैं फथा, कसरा, इसको हमने 1-1 सेकंड का वक्त देना है और हरकात इश्बाइया को हमने 2-2 सेकंड का वक्त देना है, जैसे बा, बी, बू। उम्मीद है आप इससे फायदा उठाएंगे और अब मैं अपनी साथी टीचर से गुजारिश करूंगी कि वो आपको आज का उसूल पढ़ाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा आज का सबक नंबर 6 जो है वो तनवीन के ऊपर है। तनवीन का उसूल आज हम पढ़ेंगे। तनवीन का क्या मतलब है, पहले ये देख लेते हैं। तनवीन का मतलब है तलफ्फुज में नून की आवाज पैदा करना। जब भी किसी हर्फ पर आप देखते हैं कि 2 हरकात इकट्ठी हों, जैसे ये मैंने आपको यहाँ पे एक मिसाल दी हुई है, लाम के ऊपर 2 फतहा हैं, तो ये जो हरकत है 2 फतहा की, या यहाँ लाम के ऊपर 2 दम्मा है, या यहाँ लाम के नीचे 2 कसरा है,
یہ جو تینوں دو فتح، دو دمہ اور دو کسرہ ہیں، ان کو ہم تنوین کی علامت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تنوین ان حرکات کو ہم تنوین کہتے ہیں، اس کا نام ہے تنوین. اور تنوین کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ تلفظ میں نون کی آواز پیدا کرنا. اب اس میں نون کی آواز کیسے پیدا ہوتی ہے یہ تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. کہ جو تنوین کا لفظ ہوتا ہے، جیسے یہاں لام کے اوپر فتح تین ہے، تو یاد رکھیں کہ اس میں ایک حرکت جو ہے وہ تو اس کو متحرک کر دیتی ہے، یعنی لام کے اوپر دو فتح ہے، جو پہلی فتح ہے وہ اس کو یہاں لام کو مفتوح کر دے گی. لیکن جو دوسری فتح ہے اس کے اوپر وہ نون ساکن کی جگہ ہوتی ہے، لیکن جو نون ساکن لکھنے میں تو نہیں آتا لیکن یہ پڑھنے میں آتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تنوین جس لفظ کے اوپر آتی ہے اس میں نون کی آواز پیدا کی جاتی ہے، اس نون ساکن کو کی وجہ سے جو رسم الخط میں نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. جیسے یہاں لام کے اوپر دمتین ہے، ایک دمہ جو ہے وہ لام کو یہاں پہ دیکھیں، اس کے اوپر دمہ ہے، یہ لام کے اوپر دمہ ہے، لیکن دوسرا جو دمہ ہے وہ نون ساکن کا قائم مقام ہے. اسی طرح یہاں کسرتین میں بھی یہی چیز ہے، ایک جو کسرہ ہے وہ لام کو مکسور کر دیتی ہے لیکن دوسری کسرہ نون ساکن کی جگہ پہ ہے. اسی لیے ان کی آواز جو بھی تنوین والے حروف ہیں ان کی آواز میں، ان کے تلفظ میں نون کی آواز پیدا کی جاتی ہے. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دو فتح جو اکٹھی لکھی ہوتی ہے، جیسے یہاں نون کے اوپر آپ دیکھیں دو فتح اکٹھی لکھی ہوئی ہیں، ان کو فتح تین یا فتح تان بھی کہا جاتا ہے. فتح تین جس کو عام ہم کہتے ہیں اکثر، اور عام لوگ جو ہیں عام اردو زبان میں اس کو ہم دو زبر کہتے ہیں، یعنی نون کے اوپر دو زبر ہے، ورنہ ہم دوسری اس کا نام جو ہے وہ فتح تین ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا معروف عربی نام جو ہے وہ تنوین کہلاتا ہے، یعنی نون کے اوپر تنوین ہے. ٹھیک ہے، اور ہر تنوین والے حرف کو، جس حرف کے اوپر تنوین ہے اس کے اوپر 2 سیکنڈ کا غنہ کریں. غنہ کا مطلب ہوتا ہے ناک سے آواز جاری کرنا، اور اس کی وجہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس میں دوسری حرکت جو ہوتی ہے وہ نون ساکن کی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس میں ہم نے نون کی آواز تلفظ میں پیدا کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہ دیکھیں اسفن قدرن جرزن، نون کی آواز ہم پیدا کرنے کی تلفظ میں کوشش کرتے ہیں. اسی طرح کسرتین کی طرف ہم آتے ہیں، یعنی کسی بھی حرف کے نیچے دو زیر ہے، جو عام زبان میں اردو زبان میں دو زیر ہوتی ہے لیکن اس کا دوسرا نام ہے وہ کسرتین ہے، اور عربی اس میں اس کا نام پھر وہ تنوین ہے، کسرہ کی تنوین. اور یاد رکھیں کہ اس میں بھی ہم نے 2 سیکنڈ کا غنہ کرنا ہے. دو بورم ذلالم، اس طرح کر کے ہم نے اس کو کھینچنا ہے اور اس کی آواز میں نون کی آواز، تلفظ میں نون کی آواز کو پیدا کرنا ہے، غنہ کریں گے جس کو ہم کہتے ہیں. اسی طرح ضمتین ہے، یعنی جب بھی آپ دو پیش اکٹھا ہوا لکھا دیکھتے ہیں، اردو زبان میں ہم اس کو دو پیش کہتے ہیں لیکن عربی زبان میں ہم اس کو ضمتین کہتے ہیں، اور اس کا معروف عربی نام پھر وہی ضمہ کی تنوین ہے، اور اس میں بھی ہم نے 2 سیکنڈ کا غنہ کرنا ہے. یعنی فتحتین، کسرتین اور ضمتین جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے تو یہ اس کا نام یاد رکھیں تنوین ہے، اور اس میں ہم نے 2 سیکنڈ کا غنہ کرنا ہے. ایک یہ ہم آگے اس کی مثال پہ جاتے ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی، یہ کور کریں گے ہم لیسن انشاءاللہ. آئندہ جو ہمارے لیسنز آئیں گے اس میں ہم یہ اصول کور کریں گے کہ یہ جو غنہ کی آواز پیدا ہوتی ہے یہ حروف حلقی آ جائیں آگے تو نہیں ہوتی ہے، لیکن ابھی صرف آپ اس تک یاد رکھیں کہ جہاں پہ بھی آپ تنوین دیکھیں کسی حرف کے اوپر تو اس کے اوپر آپ نے نون کی آواز پیدا کرنی ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس حرف کے اوپر بھی تنوین ہو اس کو ہم اصطلاحاً منون کہتے ہیں، یعنی یہ با جو ہے یہ منون ہے، یعنی اس کے اوپر تنوین ہے. تو یہ بھی ایک اس کی ٹرمینالوجی ہے جو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کو آسان لگے تو آئندہ سے پھر اس کو استعمال کریں کہ جس حرف کے اوپر تنوین ہے اس کو منون کہا جاتا ہے. تو اب ایڈمن سے پلیز ریکویسٹ ہے کہ کسی بھی ایک متعلمہ کو آپ انمیوٹ کر دیں تاکہ وہ تھوڑی سی پریکٹس کر لیں. جی 6599 السلام علیکم.
G6436. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. जी आप करेंगे यहाँ से प्रैक्टिस. जी. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. कुतुबुन अहदुन. इसको इख्फा नहीं करना आपने. मुझे क्यों लग रहा है कि आप नून को कंसील कर रही हैं. डोंट कंसील इट. ओके. ठीक है. अहदुन ऐसे. अहदुन. जी अहदुन जी. नबइन. जब नून को कंसील करते हैं ना वो इख्फा हो जाता है. ठीक है. वो दूसरा असूल है. और गुन्ना का असूल है, यानी इसके तलफ़्फ़ुज़ में नून की आवाज सिर्फ पैदा करें. नून को पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, लेकिन नाक से पढ़ना है आपने. नबइन. नबाइम. नबइन. जी. हुमुरुन. 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 रुम नहीं बोलना हमने. अच्छा. हुमुरुन. जी आगे कोशिश करें. वसतुन. वसतुन. जी थोड़ा सा और क्लियर पढ़ें इसको. वसतुन. तो नहीं बोलना. वसतुन. अच्छा, नून की प्रॉपर आवाज आनी चाहिए. जी बिल्कुल. वसतुन. जी. खुशबुन. जी फिर से आपने एक अच्छा पढ़ा माशाल्लाह, क्लियर हो गया था. फिर से एक दफा कोशिश कीजिए. खुशबुन. जी नाक से जारी कीजिए आवाज को. इट्स ओके, कोई मसला नहीं है. आराम से हमने सीखना है, परेशान नहीं हो. खुशबुन. जी कोशिश अच्छी है आपकी. ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह. आगे पढ़ेंगी और. जी. अच्छा कोशिश करें. जी. लबनन. जी. मसलिन. जी. फनुजुल. ठीक है. वलदन. यहाँ भी क्लियर कीजिएगा. वलदन. नाक से जारी करें. ठीक है, आप अच्छा पढ़ रही हैं. नाक से आवाज जो नून की है ना वो नाक से जारी करें. वलदन. अच्छा अच्छा है, अच्छा है. माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा है, अच्छी कोशिश है. हरमन. हरमन. जी एक दफा और पुरुष. कोशिश. जी. एक दफा और कोशिश कीजिए. हरमन. हरमन. हाँ बेहतर था माशाल्लाह. पुरुषन. गुड गुड, अच्छी कोशिश है माशाल्लाह. जज़ाकुमुल्लाह. जी जज़ाक. एडमिन किसी और को दे दें प्लीज माइक. Assalamu alaikum. G6316. G6174. Assalamu alaikum. G6174. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. अस्सलाम व रहमतुल्लाह. जी कौन पहले करेगा? मैं करूं? जी करें, बिस्मिल्लाह. जी. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. जुदादुन. जी. लबानिन. थोड़ा सा नून की आवाज निकालें. लबानिन. ला नहीं बोलें. ल ल लबानिन. ठीक है. लबानिन. जी. हुमासातिन. थोड़ा सा स्ट्रेच करें. स्ट्रेच्ड नेजल साउंड होता है इसका. हुमाजातिन. जी. उनुकिन. जी. आदामुन. जी. आजालुन. जी ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह. आगे पढ़ेंगे आप. जी. जी इनमें याद देखिएगा कि यहाँ पे हरकत इश्फाइया भी हैं जो पिछला लेसन था हमारा, तो उसको भी आप जहन में रखिएगा जब पढ़ना है आपने. ठीक है. जी. जी. ज़बादुन. जी. इलाहिन. जी. शामिखातिन. जी. इलाहन. जब ये हन पढ़ती है ना, इसको थोड़ा सा नाक से आवाज निकालने की कोशिश करिए और थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए. मैंने कहा था ना 2 सेकंड हमने गुन्ना करना है इस पे. इलाहन.
जी, अच्छी कोशिश है इंशाल्लाह। जी, सालिहन, जी बेहतर था। बलागुन, गुड, अच्छी एफर्ट है। उममुन, जी, आजबन, जी, आगे पढ़ेंगी आप? पढ़ो। जी जी, पढ़ लीजिए। अच्छा जी। हराबन, कबसिन, सुहुफन, शुअबिन। जज़ाकुमुल्लाह। मेरा ख्याल है कोई और भी बहन इंतजार कर रही थी आपके बाद, अगर वो ज्वाइन पढ़ना चाहें। जी, G6316, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, यहाँ से पढ़ लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ज़लालतुन। जी, तो उनको थोड़ा सा नाक से जारी करें और स्ट्रेच करें, लंबा खींचे थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए। ज़लालतुन। जी, बरारतिन। जी, हरजुन। उज़ुनुन। जाल की टेक्निक आपको याद है? जी। हाँ, उसको उसी टेक्निक से पढ़िएगा। उज़ुनुन। जी, नुसुकिन। जी, बिआखिन। जी, आबिदातिन। ठीक है। क़ानितातिन। जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा। उम्मीद है आपको कुछ समझ आ गई होगी तनवीन के सबक के बारे में। इंशाअल्लाह ताला फिर अगले जुमेरात को फिर दूसरा लेसन होगा। तो आपके लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम, जज़ाकिल्लाह, बहुत शुक्रिया। हम आगे चलते हैं और तदरीबुल कवायद में आज की क्लास में सूरतुल मोमिनून की ही प्रैक्टिस करेंगे। और मैं अपनी साथी टीचर से गुजारिश करूंगी कि वो आपको आज के उसूल और पिछले पढ़ाए हुए उसूलों की प्रैक्टिस करवाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम सूरह अल मोमिनून की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम 27 वर्ष तक पढ़ चुके हैं। आज वर्ष 28 से शुरू करेंगे। तो एडमिन से गुजारिश है कि किसी मुतालिमा को माइक दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। G6359। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी आप शुरू कीजिए वर्ष 28 से तावुज़ और तस्नीया के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अौहैना इलैहि अन इस्नइल फुल्क बिअयुनिना ववहयिना फ़इज़ा जाअ अम्रुना वफ़ारत तनूर फस्लुक फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजैन इस्नैनि वअहलक इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौलु मिनहुम वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। ठीक है, जज़ाकिल्लाह। इसको दोबारा से सुन लीजिए, ये वाला यहाँ से। हाँ जी, वफ़ारत। सांस ही टूट गई थी। जी कोई बात नहीं, सांस आप दोबारा से भी मिला सकती हैं। और हाँ इसको वफ़ारतन। हाँ जी, वही हाँ जी, वफ़ारत
तन्नूरु, सॉरी मैं फिर पढ़ती हूँ। वफारत तन्नूरु फस्लुक फीहा मिन कुल्लि ज़ौजैन इस्नैन व अहलक इल्ला मन सबक। पढ़ती जाओ। हाँ जी जी ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी मिन कुल्लि ज़ौजैन इस्नैन, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है तनवीन का कुल। हाँ जी, तो ये क्या है आप बताएंगी, कौन सी इलामत है तनवीन की? दो कसरा है ना जी, कसरत कसरतैन। हाँ जी हाँ जी, तो इसके लिए 2 सेकंड यहाँ पे हम गुना करेंगे। मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन व अहल। हाँ जी, मिन कुल्लि ज़ौजैन इस्नैन। ज़ौजैन इस्नैन। ठीक है जज़ाकमुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। और आखिर में भी बस यहाँ पे इन्नहुम मुग़रक़ून, थोड़ी सी जरा जुम्बिश दे दी थी गैन पे, हल्का सा जैसे हाँ जी, मुझे भी लग रहा था। जी जी नहीं होना चाहिए था। बाकी ठीक है, माशाल्लाह आपने अच्छा पढ़ा है, जज़ाकुमुल्लाह। जी एडमिन प्लीज किसी और मुतअल्लिमा को माइक दीजिए। अस्सलाम वालेकुम G6599, अस्सलाम वालेकुम। अगली पार्टिसिपेंट की तरफ चलते हैं हम। G6517, G6404, अस्सलाम वालेकुम। G6404, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी आप 29। हाँ जी इससे पहले एक सवाल पूछ सकते हैं, जो पिछली वर्स आपने पढ़ी है जहाँ पे आपने कसरतैन की है, यहाँ पे ना जब आप पढ़ती हैं जैसे मिन कुल्लिन, है ना, हाँ तो इख्फा हो रहा है। हाँ जी, तो आप इख्फा और उसमें साउंड का फर्क करना बहुत मुश्किल नहीं, इतना समझ नहीं आ रहा इवन जब वो प्रैक्टिस कर रही थी ना। जी जी, जब हम इख्फा करेंगे ना तो फिर आप जब पढ़ेंगे इख्फा का रूल तब उसको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम जो है वो जो हमारे उन्होंने पढ़ाया उसी पे ही हम फोकस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेकिन इख्फा ही हो रहा है, आपकी बात ठीक है, ठीक है। इधर भी हो रहा है इख्फा, यहाँ भी हो रहा है। मिन कुल्लि ज़ौजैन, ठीक है। तो जो आपका जो ये कसरतैन है, ये इख्फा आप कर रही हैं? नहीं, ये तनवीन है, इख्फा हम आगे पढ़ेंगे। तो वो साउंड ऐसे ही लगता है कि आप इख्फा कर रहे हैं। हाँ जी, साउंड थोड़ी सी होती है सिमिलर, लेकिन यहाँ पे इख्फा हो रहा है, ठीक है। उसके लिए है कि 2 सेकंड गुन्ना करते हैं, तनवीन की आवाज जो है वो आपने तलफ्फुज में बस नून की आवाज पैदा करनी है, ठीक है। ओके, कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पढ़िए आप। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। आप इस वर्ष में मुझे बताइए कि निशानदेही कीजिए हरूफ मुस्तालिया की, जो 7 हरूफ हैं, हरूफ मुस्तालिया मोटे पढ़े जाने वाले। मुझे इतना अच्छी तरह याद नहीं है, पर मे बी कॉफ। जी ठीक है, कॉफ, ज़ौद, जी तो ये ज़ौ है, ठीक है। ज़ौ ज़ौद भी है 7 लेटर में,
ہاں جی. اور اس ورس میں اور آئیں نہیں آئین جو ہے وہ تو اس کی ویسے آئین کی مڈل آف تھروٹ آواز ہوتی ہے, گلے کے درمیان سے آواز نکلتی ہے, لیکن کیا حروف مستعلیہ میں آئین شامل نہیں ہے, لیکن ویسے آئین کی آواز ذرا گلے کے درمیان سے نکلتی ہے, اس کو ویسے موٹا آواز پڑی جاتی ہے, لیکن وہ ان موٹے حروف میں شامل نہیں ہوتا آئین. ٹھیک ہے, اس میں خا, صاد, ضاد, طا, ظا, غین اور قاف. ٹھیک ہے, یہ والے 7 لیٹر ہیں. اچھا جی. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ. ایڈمن پلیز کسی اور بہن کو مائک دیجیے. G6500 السلام علیکم. G6500 آپ کو ایک پاپ اپ آ رہا ہوگا اسکرین پہ جس کے اوپر آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں. G6500 السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ ورس نمبر 30 سے شروع کیجیے اور 31 تک پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین. ٹھیک ہے, میں آپ کی آسانی کے لیے ایک مرتبہ پڑھ دیتی ہوں. ٹھیک ہے, جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ وَإِنْ كُنَّا. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ بھی آپ نے ٹھیک کر لیا تھا بعد میں وقر ربی. ٹھیک ہے, جی جی مشدد حروف سے پہلے یہ جزم والا جی لیٹر ہے وہ نہیں جی. پڑھا جاتا. وقر ربی. ٹھیک ہے, اور آپ مجھے اس میں بتائیں گی کوئی حرکات اشباعیہ ان دو ورسز. جی مبارکن. ہاں جی ٹھیک ہے, اور یہ جی. حرکات اشباعیہ میں سے کون سی حرکت ہے اس کی؟ یہ فتح اشباعیہ. اشباعیہ. ٹھیک ہے, اور جی. اور اصل میں موبائل پہ ذرا دیکھنا مشکل ہے, میں نے غلطی کی. مجھے جی اس پہ بھی ذالکا. ذالکا پہ بھی جی لآیا. جی یہ بھی فتح کتنا اشباعیہ. لمبا کریں گے اور ان جی کو 2 ٹائم کتنا دیں گے؟ 2 سیکنڈ. 2 سیکنڈ. جی جی جزاکم اللہ, بہت شکریہ. احسن الجزاء. جی ایڈمن پلیز کسی اور متعلمہ کو مائک دیجیے. G6323 السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ ورس نمبر 32 اور 33 کی تلاوت کیجیے تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم انشأنا من بعدهم قرنا ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. جزاک اللہ. یہاں پہ یہ والی ورس دوبارہ پڑھ لیجیے. جی. ثم أنشأنا من بعدهم
قرنًا آخرين. यहाँ पे जरा थोड़ा सा हल्का सा झटका होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, शा पे। जी तुम अंशअना, ओके जी ठीक है। कर्नन आखरीन, ठीक है। कर्नन आखरीन जी यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे ना इस तनवीन को, इसका इख्फा नहीं करेंगे, आगे जो है वो हरूफ हल्की में से है लेटर, ठीक है। जी जी और यहाँ से आपने सांस छोड़ दिया तो इलाह, अगर रुकना है तो इलाह पढ़ ले, ठीक जी है। इलाह दोबारा से मिला लें, हाँ जी ठीक है इलाहिन गैरुहु, ठीक है। और ठीक है, और आप हरकात मुख्तसरा बताएंगी मुझे इनमें से? जी मुख्तसरा जैसे फतह जी और ये सारी वही फी के नीचे कसरा है और हा के ऊपर दमा है। ये सारी मुख्तसरा इनका एक एक सेकंड आवाज आती है। और ये बदुल्लाह अलाम जलाला के ऊपर फतह शबाइया है, इलाह के ऊपर भी फतह शबाइया है और इसकी सेकंड 2 सेकंड आवाज आती है। ठीक है, माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये एडमिन एक और बहन को माइक दीजिए। 6508 अस्सलामु अलैकुम। G6508 अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये आप वर्स नंबर 32 और 33 को पढ़िए। हाँ जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा अंशअना मिन बअदिहिम क़रनन आखरीन फ़अरसलना फ़ीहिम रसूलन मिनहुम अन इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह अफ़ला तत्तक़ून। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। बस आऊज़ु बिल्लाह में आइन की आवाज को थोड़ा और, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है। ओके साकिला यहाँ अच्छा पढ़ा है। आप बताएंगे मुझे इनमें हरकात अशबाइया इन दो अलिफ आयत नंबर 32 में अलिफ के ऊपर आखरीन, ये ठीक है। एंड देन अन इअ्बुदुल्लाह इधर अल्लाह के नाम के ऊपर और इलाहिन जी, ये फतह अशबाइया है, ठीक है। और इसको कितना वक्त देते हैं? इनको 2 सेकंड के लिए लंबा करते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी, अब हमारे आज के लेसन का वक्त खत्म होता है। यहाँ पे एडमिन की तरफ चलते हैं, अगले वीक मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं अभी अपनी साथी टीचर को आज के उसूल को मज़ीद एक्सप्लेन करने की गुजारिश करूंगी ताकि G6404 की कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम अगेन। मेरा ख्याल है अभी एक पूछ रही थी जो हमारी दूसरी टीचर पढ़ा रही थी कि हम यहाँ पे इख्फा या इजहार क्यों नहीं करते। तो अगर मैं आपको सिर्फ एक चीज बता दूं दोबारा से कि मैंने आपको बताया था कि जो ये 2 हरकात होती हैं फतहतैन और कसरतैन और दम्मतैन, इनमें जो दूसरी हरकत होती है जो सेकंड स्ट्रोक होता है दैट रिप्रेजेंट्स नून साकिन। अब ये बात याद रखें कि नून साकिन के 4 उसूल होते हैं, इख्फा, इजहार, इदगाम और इखलाब। दैट विल कम लेटर इन द लेसन्स। अभी सिर्फ आपको मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जहां पे भी आपने तनवीन की हरकत देखनी है, ये स्ट्रोक देखना है, वहां आपने नून की आवाज पैदा करनी है, तलफ्फुज में अपने नून को नाक से जारी करना है। दैट्स ऑल आज का लेसन था। आइंदा जो इख्फा और इजहार, बिल्कुल बच्ची ने बात सही की है कि इख्फा भी होता है,
جو تنوین ہے دس از اے رول آف نون ساکنہ, اس کے اندر ایک نون ساکن ہے, اور یہ 4 اصول جو میں نے آپ کو کہے اس کے اصول ہیں جو آئندہ اسباق پہ آئیں گے. سو مجھے لگا کہ وہ کنفیوز ہو رہی ہیں, اس لیے میں نے سوچا میں آپ کو دوبارہ بتا دوں. اس وقت جو ہمارا چھوٹا سا سبق تنوین کے اوپر ہے وہ صرف اس چیز پہ فوکس ہے کہ ہم نے جہاں پہ بھی تنوین کی حرکت دیکھنی ہے, تنوین کا سائن دیکھنا ہے, وہاں ہم نے تلفظ میں نون کی آواز پیدا کرنی ہے. مزید اس نون ساکن کا ہم نے اخفاء کرنا ہے یا ہم نے اظہار کرنا ہے یا ادغام کرنا ہے یا اقلاب کرنا ہے, وہ انشاءاللہ تعالی فیوچر لیسنز میں آئیں گے. تو اگر آپ نے دوبارہ میرے سے کچھ پوچھنا ہے تو پلیز انمیوٹ کر کے پوچھ لیں, نہیں تو میں یہاں پہ ہی لیسن ختم کرتی ہوں. السلام علیکم, جزاک اللہ for clarifying. جب وہ لڑکی پڑھ رہی بھی تھی نا, like and you were trying to tell her that oh it's not ikhfa, you have to make sure you sound like noon ka sound aaye, it was still hard to hear the sound of the noon. Yeah, like that comes with practice, beta. It takes time. It doesn't come just automatically, but she was trying and I think everyone else is trying. So is it okay if I try and you can tell me if I'm doing it right? Okay, you can. Yeah, of course, please do. Yes. Okay. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ji. Thamanan. Yes, it's perfect. You're doing it really well. With this stretched nasal sound, it will be followed by ikhfa and izhar and iqlab, provided what letters come after this tanween. ठीक है? So if it's huruf al-izhar, then it will be izhar. If it's huruf al-ikhfa, then it will be ikhfa. So there are different set of letters which due to those letters followed by these tanween sign that makes us do ikhfa or izhar, idgham or iqlab. It all depends what these letters would be. So that's why I said not to do any ikhfa or izhar at the moment. Just learn to produce a stretched nasal sound. That's all for now. Okay, is that clear? So if you aren't clear, then you can ask the teacher on Thursday again, and then we'll keep repeating these lessons again and again, and inshallah with some practice we will get to some extent, which I would say would be not to perfection, but we will improve inshallah. ठीक है बेटा? Okay, jazakumullah सल जज़ा. जी एडमिन की तरफ वापस चलते हैं. जी जज़ाकिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपके एक्सप्लेन करने का भी बहुत शुक्रिया. अब हम अपनी क्लास के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं और हमारी पूरी G6 की टीम की जानिब से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. अगली क्लास हमारी इंशाल्लाह जुमेरात 30 तारीख को होगी, और इसके साथ ही मैं अपने साथी टीचर से गुजारिश करूंगी कि वो आज की दुआ के साथ क्लास का इख्तिताम करें. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी क़ब्री. अल्लाहुम्मा अर्हमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम. वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमह. अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत वअल्लिमनी मिन्हु मा जहिल्त वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि वन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन. आमीन. जज़ाकिल्लाह, बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज.